हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सही तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और उसमें हमने कुछ डाउट्स भी लिए थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगला लेक्चर हमारा जो सेशन होगा वो डाउट सेशन होगा और कुछ बच्चों ने मेरे पास डाउट्स भेजे भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट with the questions which you have sent me on my WhatsApp number. So, say first question given: two circles 1 and 2 are externally tangential. A tangent to the circle 1 passes through the center of the circle 2, and the distance from the point of tangency to the center of the circle 2 is 3 times the radius of the circle 2. Then ratio of the circumference of the circle 1 to the circumference of the circle 2. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दो सर्कल दिए हुए हैं. इट इज सर्कल 1 named H and another circle is circle 2. Suppose it is circle 2. They are tangential to each other, means they touches each other at one point. एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. अब इसने कहा कि suppose the centers are A and B. इसका सेंटर मान लिया मैंने A है and its center is B. Tangent of circle 1 is drawn from center of circle 2. Then this PB will be tangent of the circle 1. PB हमारे पास क्या होगा? circle 1 का tangent होगा. It is tangent of the circle 1 PB. And length of this PB is equal to 3 times the radius of the circle 2. वो 3 times है इसका सर्कल 2 की रेडियस का. सपोज रेडियस ऑफ सर्कल 2 इज r, देन इट बिकम्स 3r. आई हैव टेकन इट हियर स्मॉल r. एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, सपोज इट इज कैपिटल R. एंड वी नो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देन दैट एंगल इज 90. एंड इफ वी ज्वाइन AB, अगर हम AB को मिलाते हैं तो दैट विल ऑलवेज पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. 9th क्लास में हमने पढ़ा था क्या इफ टू सर्कल्स टचेज एट वन पॉइंट एक्सटर्नली और इंटरनली, देन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर्स विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन से पास होगी. इस सर्कल की रेडियस क्या है हमारे पास? R, और इसकी रेडियस क्या है हमारे पास? कैपिटल R. देन कंप्लीट लेंथ AB बिकम्स R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r. अब यहाँ पे इस फिगर में आप ध्यान से देखें तो APB हमारे पास क्या है? एक राइट ट्राइंगल है. इन राइट ट्राइंगल APB we can apply Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem what we can say? AB square. AB is hypotenuse. Hypotenuse square is equal to sum of squares of other two sides. Then it becomes AP square plus PB square. Put values. AB is R plus R. Capital R plus small r whole square. That is equal to AP is capital R, that becomes R square, plus PB is 3R, that becomes 9R square. And if we simplify it, it becomes R square plus 2 capital R small r, that is equal to R square plus 9R square. यहाँ पे हम देखें R square प्लस साइन है और उस साइड में भी R square प्लस साइन है. क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. 2 capital R small r, taking R square in that side, in left side, right side, it becomes, left side it becomes 8R square. 9 R square minus R square 8R square. अगर हम 2 से कैंसिल कराना चाहें, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8. स्मॉल r से R square कैंसिल हो जाएगा किस पे? R पे. तो मेरे पास वैल्यू आ गई कैपिटल R इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल r. Means radius of circle 1 is 4 times radius of circle 2. Now we have to find ratio of their circumferences. Circumference of circle 1 upon circumference of circle 2. C here represents circumference. Circumference of circle 1 upon circumference of circle 2. That is equal to circumference of a circle is 2 pi r. Capital R, radius of first circle, and it is 2 pi r radius of second circle. 2 pi से 2 pi यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रहा है. It remains capital R upon small r, and capital R is equal to 4 times small r. We can put 4r upon r, cancel करें तो it becomes 4:1. Then ratio of their circumferences, circumference of circle 1 is to circumference of circle 2, that is equal to 4:1. यही क्वेश्चन था हमारे पास. एक अगला क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन शोन बिलो
if the radius of each circle is equal to the side of the length of hexagon, which in turn is equal to 6 centimeter, A and B are centers of the circles. यहाँ पे फिगर दी हुई है, उस फिगर में क्या कह रहा है कि एक हेक्सागोन है और दो सर्कल्स ड्रा किए गए हैं और दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल टू साइड ऑफ हेक्सागोन, मतलब दोनों सर्कल की रेडियस रेडाई है वो इक्वल है एंड इक्वल टू साइड ऑफ हेक्सागोन। यहाँ पे इसने रेगुलर हेक्सागोन वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इसने कहा रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ हेक्सागोन। तो मीन्स हेक्सागोन की साइड के बराबर है। अगर हेक्सागोन की साइड डिफरेंट होती थी पॉसिबल नहीं होता, इट मीन्स हेक्सागोन इज रेगुलर हेक्सागोन। तो यहाँ पे एक हेक्सागोन दी हुई है और दो सर्कल्स दिए हैं फिगर में। फर्स्ट ड्रा टू सर्कल्स, ये दो सर्कल मैंने ड्रा किए, सेंटर्स आर ए एंड बी। इसका सेंटर हमारे पास ए है एंड इट्स सेंटर इज बी। कंप्लीट द हेक्सागोन, हेक्सागोन को कंप्लीट कीजिएगा तो ये हमारे पास क्या बन गई, ए सी डी बी ई एफ इज ए हेक्सागोन। नाउ वी हैव टू फाइंड शेडेड रीजन। व्हाट इज शेडेड रीजन? शेडेड रीजन मींस सी डी ई एफ, ये रीजन है, ये शेडेड है, मींस एरिया ऑफ हेक्सागोन नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल्स। हेक्सागोन का वो एरिया निकालना है हमें जो सर्कल्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे अब हमें मालूम है क्या, ईच एंगल ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन का ईच एंगल कितना होता है, दैट्स 120 डिग्री। हेक्सागोन का ईच एंगल कितना बन गया, 120 डिग्री। देन एंगल ए इज 120 डिग्री and angle B is also 120 degree. And side of hexagon is 6 centimeter. Then radius of each circle is also 6 centimeter. सर्कल की दोनों की रेडियस क्या बन गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या बन जाएगा मेरे पास, हेक्सागोन के एरिया में से क्या करें हम, इस क्वाड्रेंट का, इस सेक्टर का और इस सेक्टर का, दोनों सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन के एरिया इट इज हेक्सागोन माइनस एरिया ऑफ टू सेक्टर्स, दोनों सेक्टर्स का एरिया, टू सेक्टर्स and both sectors are of equal radii and equal central angle, then they are identical. हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, 6 times एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइड, 6 into √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितने हमारे पास यहाँ पे 6 स्क्वायर करेंगे हम, क्या बन जाएगा 36 माइनस 2 times एरिया ऑफ वन सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 थीटा 120 अपॉन 360। नाउ सिंप्लीफाइड, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 9 जा 36 और 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 180 पे, और 36 3 जा 180 होता है हमारे पास। देन इट रिमेन्स 54 into √3 is 1.73। अगेन कैंसिल इट बाय 3, इट बिकम्स 40। 120 को अगर 3 से कैंसिल करते हैं तो इट बिकम्स 40 पाई माइनस 40 into pi 3.14। Now solve it and result will be there। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास न्यूमेरिकल रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सर्कल्स एंड स्क्वायर्स, वन सर्कल एंड स्क्वायर दे हैव सेम सेंटर O एंड इक्वल एरियाज, दोनों का एरिया सेम है। सर्कल हैज रेडियस 1 एंड सर्कल इंटरसेक्ट्स वन साइड ऑफ द स्क्वायर एट पॉइंट्स P and Q। Then find the length of PQ and radius of circle is 1 centimeter। सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन की भी, कह रहा है कि एक तो सर्कल है, इट इज ए सर्कल एंड स्क्वायर, एक स्क्वायर है, इस प्रकार से स्क्वायर ड्रा की गई है। तो उसके कॉर्नर्स क्या है, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, और ये जो सर्कल है एक साइड को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस पॉइंट्स आर P and Q वेयर सर्कल इंटरसेक्ट्स दिस साइड ऑफ दिस स्क्वायर एंड बोथ हैव सेम सेंटर, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, इट इज O। ये O लिया है इसने। अब अगर मैं ये पॉइंट मान लूं सपोज इट इज A एंड इट इज B एंड इफ आई ज्वाइन BQ and I join AP, what becomes
पी क्यू बी इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू बी हमारे पास क्या बन गई, रेक्टेंगल, एंड सर्कल सर्कमस्क्राइब्स द रेक्टेंगल, देन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा दैट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा, एंड दैट्स लेंथ इज इक्वल टू 2, उसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, 2 होगी, ये पॉइंट था मेरे पास O, ये लेंथ हमारे पास क्या आ गई, पी क्यू पी बी इज इक्वल टू 2, पी बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, and this BQ suppose it is equal to side of the square, स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा, इट इज A। इससे पहले इसने एक चीज और दे रखी है, क्या चीज दे रखी है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर की साइड अगर मैंने A ली तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर, देन A स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, बिकॉज why pi, because r is equal to 1, रेडियस ऑफ जो सर्कल है वो क्या दे रखी है यहाँ पे 1, तो ए स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालनी क्या लेंथ थी, पी क्यू, रेक्टेंगल का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, देन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल पी क्यू बी ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू बी, राइट ट्रायंगल पी क्यू बी में क्या आ गया हमारे पास, बाय पाइथागोरस theorem what we can say, PQ square, हमें PQ निकालना है, PQ square is equal to hypotenuse square PB square minus perpendicular square BQ square, it becomes PB is 2, then 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 minus BQ is A, then it becomes A square, and PQ square is equal to 4 minus pi, क्यों, क्योंकि हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी, क्या थी वो पाई, द लेंथ ऑफ पी क्यू वी विल टेक योर पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, देन इट इज 4 माइनस पाई, इट इज लेंथ ऑफ पी क्यू, जो कि हमें फाइंड करना था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे टू सर्कल्स touch each other externally, not externally, two circles touch each other internally, and sum of their areas is 116 pi meter square, and distance between their centers is 6 meter. Then find radius of both the circles. दोनों सर्कल्स की हमें रेडियस फाइंड करनी है यहाँ पे, तो देखिए उस क्वेश्चन को भी। टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, अभी मैंने बताया था, जो अभी क्वेश्चन किया उससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या, कि इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली, देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी दैट विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं, सपोज इट्स सेंटर इज ए एंड इट्स सेंटर इज बी, माना एक का सेंटर है एक का सेंटर बी है, एंड दे टच ईच अदर एट पॉइंट पी। देन इफ वी ज्वाइन ए बी, अगर हम ए बी को ज्वाइन करते हैं, देन ए बी विल पास थ्रू पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली, then line segment joining their center will pass through their point of intersection, उनके point of intersection से पास होगी। यहाँ पे इसने दे रखा है distance between centers of both the circles is 6, means दोनों के center के बीच में distance कितना है AB, that is 6। Suppose radius of the smaller circle is small r and radius of larger circle is capital R। एक रिलेशन तो यहाँ पे हमारे पास बन गया, this AB is equal to 6 मीटर, नॉट इन सेंटीमीटर, इट इज मीटर। सर्कुलर पार्क हो सकता है ये, और कोई वो फील्ड हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं कैपिटल आर में से स्मॉल आर सब्ट्रैक्ट कर दूं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकालूं तो दैट बिकम्स 6 प्लस आर। सपोज इट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, मान लिया हमारी इक्वेशन क्या है फर्स्ट। दूसरा केस इसने दिया हुआ था कि सम ऑफ देयर एरियाज, इसका एरिया क्या होगा सर्कल का, लार्जर सर्कल का पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, that is 116 pi meter square. Taking pi common here, it becomes r square plus r square, that is equal to 116, equation second। अब यहाँ पे देखिए हमने कैपिटल आर की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 6 प्लस आर, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में इस को पुट कर दूं बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, व्हाट वी कैन से, इन प्लेस ऑफ आर पुट
6 प्लस स्मॉल आर, 6 प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 116। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 116। और अगर इसको लिखें तो 2 आर स्क्वायर प्लस 6 आर 116 इधर आएगा, क्या होगा, माइनस का होगा, और 36 यहाँ पे क्या है, पहले प्लस का है, व्हाट इट विल रिमेन minus 80 is equal to 0. It is not 6r but it is 12r. Taking 2 as common, 2 को कॉमन लेते हैं तो ये बचता हमारे पास r square plus 6r minus 40 is equal to 0. Factorize it by splitting the middle term. अगर फैक्टर करेंगे, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ इसके, that will be r plus 10 and r minus 4 will be factors, that is equal to 0. Now r has two values, r is either minus 10 or r is 4. r radius of the circle that cannot be negative, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कम्स r is equal to 4. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, r की इस वैल्यू को किस इक्वेशन में रख देंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में, तो कैपिटल R हमारे पास क्या आ जाता है, 10. देन रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स आर 10 and 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें रेडियस ही निकालनी थी दोनों सर्कल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर दे रखा है, कह रहा है ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 6 मीटर, उसमें भी साइड स्क्वायर की 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ABC एंड BAD आर क्वार्टर सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस, देन फाइंड शेडेड एरिया। अच्छा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ABCD इज स्क्वायर, एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, इट इज ए स्क्वायर नेम्ड ABCD and its side is 6 centimeter, means AB is equal to BC, CD, AD, all sides are equal. अब यहाँ पे taking B as center and AB और BC as radius, a arc has been drawn, एक arc ड्रा की गई है इस प्रकार से। Again taking A as center, another arc has been drawn, एक दूसरी arc ड्रा की गई है। ये पोर्शन है, ये शेडेड है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, उधर से भी ये पोर्शन शेडेड है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। व्हाट इट विल बी, वो क्या होगा ये हमें बताना है। सपोज दे आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट P, आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट P, P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं किसको, इफ आई ज्वाइन PA एंड PB, अगर मैं P और PB को ज्वाइन कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली PAB will be equilateral triangle. Why it will be equilateral triangle? Equilateral triangle क्यों होगी? क्योंकि देखिए इस क्वाड्रेंट की जो रेडियाई है वो क्या है, AB, और ये भी क्या है, रेडियस है इसकी AP। उधर से देखें तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस क्या है हमारे पास, AB, और ये भी क्या है, रेडियस है PB। क्योंकि दोनों ही जो क्वाड्रेंट है वो सेम रेडियाई है, तो PAB हमारे पास क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं, केवल इस क्वाड्रेंट में आप देखें ABCP जो क्वाड्रेंट है या APCD क्वाड्रेंट है, उसमें हम देखें तो ये शेडेड पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, शेडेड पोर्शन होगा पूरे क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल प्लस ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट का एरिया घटा दें। क्या करें, क्वाड्रेंट में से इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस दीज टू सेगमेंट्स, इफ वी सब्ट्रैक्ट देम देन वी विल फाइंड शेडेड रीजन, तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। और दोनों शेडेड रीजन क्या है, आइडेंटिकल है, तो एक शेडेड रीजन का एरिया हम निकालें, उसको 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो ट्राइंगल तो क्या है, इक्विलेटरल है जिसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ईच क्वाड्रेंट की रेडियस भी क्या है, 6। तो मींस साइड ऑफ स्क्वायर सपोज A एंड रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट आर बोथ आर इक्वल, दैट आर 6 सेंटीमीटर। तो इस एक पोर्शन के शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, पहले हमें सेगमेंट्स का एरिया, इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया हम निकालेंगे। ये दोनों सेगमेंट्स भी इक्वल हैं क्योंकि ये कोड और ये कोड इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एरिया भी क्या होगा, इक्वल। तो इस सेगमेंट का एरिया क्या बन जाएगा मेरे पास, ये सेगमेंट एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट्स, एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट्स, दोनों ही सेगमेंट्स का एरिया क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन सेगमेंट। और एक सेगमेंट का एरिया क्या होगा, फिर से अगर आप फोकस करें इस पे तो यहाँ पे देखें कि ये जो है PAB और ये आर्क,
ये क्या बना रही है, एक सेक्टर बना रही है, और उस सेक्टर में से अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल घटा दूं तो ये क्या बचेगा मेरे पास, सेगमेंट। तो क्या बनेगा, ये सेक्टर माइनस ट्रायंगल, और ट्रायंगल कैसी है हमारे पास, इक्विलेटरल। सेक्टर का एंगल कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। देन इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ, 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों आइडेंटिकल हैं। एक सेगमेंट का एरिया निकालें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सेक्टर का एरिया, एंगल अगर 60 है तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है हमारे पास, 6, देन दैट बिकम्स 36 माइनस ट्रायंगल इक्विलेटरल है, √3/4 साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। Now taking 36 as common, yeah, 2 multiplied 36 by 2 common, 36 by 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि 6 में 2 कॉमन था, 4 में भी 2 कॉमन था, तो 36 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा पाई 3.14, 6 में से 2 कॉमन आ गया था, दैट रिमेन्स 3 माइनस √3 1.73 अपॉन 4 में से 2 कॉमन आ गया था, इट रिमेन्स 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट बिकम्स 36 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम क्या आता है हमारे पास, 6, 2 3.14 जा 3.14 टाइम्स 2 क्या बनेगा, 6.28 माइनस 1.73 मल्टीप्लाइड 3, दैट बिकम्स 5.19। अगर कैंसिल करना चाहें तो किससे कैंसिल हो गया, 6 से, तो ये मेरे पास आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई किस 6.28 माइनस 5.19, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9, 0 और 1, तो ये बचा हमारे पास 1.09 एंड दैट बिकम 6.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आया अभी, ये मेरे पास आया इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट का एरिया है। हमें ये शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बन जाएगा, इस एक का निकालेंगे और डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रिक्वायर्ड एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया था वो क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया दैट विल बी इक्वल टू क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है वही 6, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे इक्विलेटरल, माइनस एरिया ऑफ दीज 2 सेगमेंट्स, इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया मेरे पास आया 6.54 एंड 2 टाइम्स ऑफ इट, इसका क्या लेंगे हम, 2 टाइम्स क्यों लेंगे, ये शेडेड प्लस ये शेडेड आइडेंटिकल है, एक शेडेड का निकाल लिया, उसका डबल कर लिया, तो क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया 2 टाइम्स 1/4 पाई अगेन 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा 1.73 √3/4 इंटू साइड्स, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6.54, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1/4, 4 से कैंसिल होगा 9 पे, और 3.14 मल्टीप्लाइड 9 कितना बनता है 6, 2 point और 28.26 इट बिकम्स, और ये आएगा हमारे पास 4 से 9 पे कैंसिल, 9 को 1.73 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 प्लस 2 65 और 9 1 जा 9 प्लस 6 15.57 माइनस 6.54, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, पहले तो ऐड कर लें 15.57 को 6.54 को, 15.57 प्लस 6.54 इट बिकम्स 1, 10 प्लस 1 और ये क्या बनता है हमारे पास 2 और 2 22.11 और इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड 28.26 माइनस 22.11, इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड 6.14 और 15 6.15, और अगर इसको लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं 12.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या था हमारा एरिया था किसका, शेडेड रीजन का, और इसमें साथ में हम क्या लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, व्हाई विल राइट अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट को लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे √3 की वैल्यू ली, वो क्या थी अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी 1.73, यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू ली 3.14, वो भी क्या थी हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12.30 एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक बार फिर से इस पे ध्यान दें, मैंने क्या किया है यहाँ पे,
मैंने एक क्वाड्रेंट को चुना और उस एक क्वाड्रेंट में पहले मैंने इन सेगमेंट्स का एरिया निकाला। सेगमेंट्स का एरिया किससे निकाला, ये एक सेक्टर लिया और इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आइडेंटिकल थे इसलिए मैंने क्या लिया, 2 टाइम्स लिया। सेगमेंट्स का एरिया आ गया 16.54, जो मैंने ये लाइन जिगजैग की है, ये दोनों सेगमेंट्स का एरिया क्या आ गया, 6.54। फिर मैंने लिया एक साइड रीजन का एरिया, इस साइड रीजन का निकाला है क्वाड्रेंट माइनस 3 चीजों का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल और दोनों ये सेगमेंट। तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल और दोनों सेगमेंट का एरिया 6.54 था, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसका मैंने क्या ले लिया, 2 टाइम्स, क्योंकि जो साइडेड पोर्शन थे दोनों आइडेंटिकल थे, तो एक का निकाल लिया, डबल कर दिया, तो एरिया हमारे पास क्या आ गया, 12.30। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि कल भी शायद ये क्वेश्चन आया था, मेरा ध्यान है, उसमें साइड दी हुई थी 14 स्क्वायर की, यहाँ पे स्क्वायर की साइड दी हुई है 8। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, केवल डिफरेंस है तो क्या है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी क्या, साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर इज a, देन फाइंड एरिया ऑफ साइडेड रीजन। फिगर दे रखे हैं, फिगर में क्या दे रखा है यहाँ पे कि स्क्वायर ABCD इज गिवन एंड 4 सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन टेकिंग each vertex of the square at center and each circle is tangential to other circles. Then find the area of the square not included in the circles. Square का वो एरिया निकालना है जो सर्कल्स में इंक्लूडेड नहीं है। देखिए फिगर एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को करते हैं। ABCD is a square. ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है, कह रहा है सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन टेकिंग ईच वर्टेक्स एट सेंटर। सर्कल ड्रा किया, बी को सेंटर लेके सर्कल ड्रा किया, सी को सेंटर लेके सर्कल ड्रा किया एंड डी को सेंटर लेके सर्कल ड्रा किया। चारों सर्कल्स सेम रेडियस के हैं, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन क्या है, इसको अगर हम स्टेटमेंट वे में बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस स्क्वायर नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल्स। ये स्क्वायर का वो एरिया है जो सर्कल्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखी थी, साइड ऑफ स्क्वायर इज a, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a। देन रेडियस ऑफ ईच सर्कल, हर सर्कल की रेडियस कितनी बन गई, चारों सर्कल्स की रेडियस इक्वल है, दैट इज हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर a/2। तो शेडेड एरिया क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं और चारों क्वाड्रेंट आइडेंटिकल ऑफ सेम रेडियस हैं, तो चारों क्वाड्रेंट को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दीज 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया किसके बराबर है, 1 सर्कल पाई आर स्क्वायर and it is a square minus pi r square. R is a, radius of circle a, then that becomes a square upon 4. And if I take a square as common, then that becomes 1 minus pi by 4, और more simplified way में हम क्या लिख सकते हैं, a square by 4 into 4 minus pi unit square. That will be the area of the shaded region, या that area which lies in the square but not in the circles. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, उसमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 1 सेंटीमीटर एंड ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्स दिस सर्कल्स। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 सर्कल्स है, सेम क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन हमने किया। 4 सर्कल्स दे आर टेंजेंशियल टू ईच अदर, वो एक दूसरे पे टेंजेंशियल है एंड ऑल 4 सर्कल्स आर आइडेंटिकल। चारों ही सर्कल्स क्या है, आइडेंटिकल हैं और इनके जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स भी इन सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंशियल हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अगर मैं ले लूं सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज ए, इट्स बी सी एंड डी, और क्या ले लिया मैंने, डी। एंड इफ आई ज्वाइन, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं ए बी बी सी सी डी एंड डी, तो हमारे पास क्या बन गया, अगेन ABCD इज स्क्वायर। ABCD हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया तो क्वेश्चन क्या हो गया, देखिए ये सेम हो गया, वही एरिया हमें निकालना है। उसमें स्क्वायर की साइड ए दी हुई थी, इसमें स्क्वायर की साइड 1 + 1 क्या बन गया हमारे पास 2। तो a को अगर 2 से रिप्लेस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको आप अपने आप से कीजिएगा सोल्व। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर AB is 4 centimeter, BD is 4√3 centimeter, then relation between
area of triangle ACB and shaded region, shaded area bounded by three semicircles is फिगर दी हुई है। इस फिगर में क्या दिया हुआ है, एक तो लार्जर सेमी सर्कल दिया हुआ है, इट इज लार्जर सेमी सर्कल विद डायमीटर AC एंड B इज एनी पॉइंट, B कोई पॉइंट है एंड D इज एनी पॉइंट ऑन दिस सेमी सर्कल एंड BD इज परपेंडिकुलर, BD इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया है किसको डायमीटर लेके, AB को डायमीटर लेके। एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया है किसको डायमीटर लेके, BC को डायमीटर लेके। अब शेडेड रीजन कौन सा है, इट इज शेडेड रीजन, ये रीजन है जो ये शेडेड रीजन है। हमें एक तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और एक ट्राइंगल ADC, AD को और अगर हम DC को ज्वाइन करें तो ADC का एरिया हमें बताना है। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल D क्या है, 90 डिग्री। वाई इट इज 90 क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल AC के द्वारा सर्कल के ऊपर सबटेंड किया गया एंड AC इज डायमीटर, तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये ADC क्या होगी हमारे पास, राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ADC, राइट ट्राइंगल ADC में ADC एंगल D is 90 degree. And in right triangle, a perpendicular is drawn from vertex of right angle to the hypotenuse. Right angle वाले vertex से अगर हम hypotenuse पे perpendicular ड्रा करें, then triangles so formed are similar to each other and to the whole. ये दोनों ही triangle आपस में similar होंगे और ये complete के भी similar होंगे. And if these two triangles are similar, sixth chapter में हमने एक result पढ़ा था, square of this perpendicular, ये जो perpendicular हमने ड्रा किया इसका square क्या होगा, product of segments of hypotenuse. AB एंड BC की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इट इज BC इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट BC, AB इज 4 सेंटीमीटर एंड BD इज 4√3 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है हमारे पास, 4√3 सेंटीमीटर। हमें BC फाइंड कर ले हम पहले, तो इस रिजल्ट में अगर मैं वैल्यू रखूंगा BD इज 4√3 एंड 4√3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16√3 का 3, that becomes 48 is equal to AB is 4 into BC. Then BC comes 12 4 का कितना होता है 48, 12 सेंटीमीटर। BC हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। एंड देन AC becomes, AC मेरे पास क्या बन गया, AC is 16 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या करें हम, हमारे पास तीनों सेमी सर्कल्स की रेडियस आ गई। लार्जर सेमी सर्कल है उसकी रेडियस सपोज R1, दैट इज डायमीटर 16 है तो रेडियस क्या होगी 8 सेंटीमीटर। स्मॉलर जो सेकंड है उसकी रेडियस सपोज R2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। एंड स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल की रेडियस क्या आ गई, हाफ ऑफ 4 हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना था रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC एंड शेडेड रीजन। तो ट्राइंगल का एरिया क्या बन गया, एरिया ADC, एरिया ADC दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस, बेस क्या है हमारे पास AC इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है हमारे पास BD। तो AC हमने निकाल लिया, AC इज 16 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू 16 एंड इंटू BD इज 4√3। BD क्या बनता है 4√3, 2 से कैंसिल करेंगे 8 पे, दैट बिकम्स 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसने रिप्रेजेंट किया ट्राइंगल के सिंबल से इस ट्राइंगल के एरिया को। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड एरिया क्या आया हमारे पास, शेडेड एरिया दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, वो बनेगा हमारे पास बिग सेमी सर्कल माइनस दिस टू स्मॉल सेमी सर्कल्स। तो बिग सेमी सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। पाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे तो बचता है मेरे पास R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर और पाई 3.14 R1 स्क्वायर, R1 इज 8 स्क्वायर 64 माइनस R2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, it becomes 3.14 into 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको रिप्रेजेंट किया इसने शेडेड रीजन को किससे, ऐसे। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा विच वन इज लार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ABCD is a rectangle and P lies on AD and Q on AB and area of PAQ, QBC, PCD equal, then
बी क्यू इज टू फाइंड ए क्यू, बी क्यू की लेंथ 2 दे रखी है, ए क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। पहले तो एक रेक्टेंगल बनाए, रफ स्केच। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है एंड ए पॉइंट पी लाइज ऑन ए डी, क्यू लाइज ऑन ए बी। ज्वाइन पी क्यू, ज्वाइन सी क्यू एंड सी पी और सी क्यू को हमने ज्वाइन किया। अब कह रहा है कि ये जो एरिया है पी ए क्यू, सपोज इट इज के, इट इज इक्वल टू क्यू बी सी एंड इट इज इक्वल टू सी डी पी। ये तीनों एरिया इक्वल दे रखा है एंड सपोज इट इज के एंड लेंथ ऑफ बी क्यू इज 2 यूनिट्स। बी क्यू की लेंथ क्या दे रखी है, 2। हमें फाइंड करनी है ए क्यू की लेंथ, लेट इट इज ए। हमें ए क्यू फाइंड करना है, वो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, ए मान लिया। एंड सपोज दिस साइड इज बी, ये रेक्टेंगल की साइड क्या मान ली, बी, तो ये साइड भी क्या हो गया हमारे पास, बी होगी। ये साइड क्या बनती है, a plus 2 and opposite sides of rectangle are equal, then CD is also a plus 2. Suppose it is C, ये पार्ट मैंने क्या मान लिया, C, AP पार्ट, then this part remains B minus C, ये पार्ट क्या बचता है, B minus C। अब जो इसने दे रखा था कि तीनों एरिया इक्वल हैं, मीन्स एरिया AQP का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस ए हाइट सी दैट इज इक्वल टू के। यहाँ से मैं अगर सी की वैल्यू निकाल लूँ तो वो बनता है 2k अपॉन ए। सी की वैल्यू आ गई। दूसरा एरिया वहाँ पे था हमारे पास, ये वाली ट्राइंगल बी के उसी का एरिया क्या बनेगा, 1/2 बेस 2 इंटू हाइट बी है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू के। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है मेरे पास, के। तीसरी ट्राइंगल थी हमारे पास कौन सी, पी सी डी या डी पी सी। तो एरिया डीपीसी का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस ए प्लस 2 इंटू हाइट बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, अगेन के। क्यों लिया मैंने बेस इंटू हाइट, इट इज राइट ट्राइंगल एंड इट इज राइट ट्राइंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल राइट एंगल क्या होगा, 90। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो a प्लस 2 इंटू इन प्लेस ऑफ b व्हाट वी कैन पुट, b की जगह क्या रख सकते हैं हम, k, माइनस इन प्लेस ऑफ c वी कैन पुट 2k अपॉन a, और अगर ये 2 उधर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई दैट बिकम्स 2k। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो a प्लस 2 इंटू a एलसीएम आता है, इट बिकम्स ak माइनस 2k दैट इज इक्वल टू 2k। a प्लस 2, if k is common in this bracket, k common है तो what remains, a minus 2 upon a that is equal to 2k. Taking k common from both sides, what it remains, a plus 2 into a minus 2 क्या बनता है, a square minus 4 that is equal to, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा that becomes 2a and we can write it as a square minus 2a minus 4 is equal to 0. It is quadratic equation in a में quadratic equation आ गई, a is here variable। यहाँ पे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, quadratic फार्मूला अप्लाई करेंगे। quadratic फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले क्या निकालेंगे हम, d, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू d is equal to क्या होगा, b स्क्वायर, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म माइनस 2, वो क्या बनेगा 4 माइनस 4ac 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म को जनरली हम ये लेते हैं, यहाँ पे ले रखा है तो इसलिए उसको और कुछ बोल रहे हैं आप। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1 एंड into constant term that is minus 4 that becomes 4 plus 16 and that is equal to 20। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आती है हमारे पास 20। तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा, a is equal to माइनस b, b की जगह क्या हमारे पास 2 तो that becomes 2 प्लस माइनस रूट d, d की जगह क्या हमारे पास 20 that is रूट 20 अपॉन 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर that is 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो a is equal to 2 प्लस माइनस 4 into 5, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2, तो that becomes 2 root 5 upon 2, taking 2 common, it becomes 1 plus minus root 5। अगर मैं इसको लो a की वैल्यू 1 माइनस रूट 5 लो तो वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि रूट 5 1 से ग्रेटर है। तो हम क्या लेंगे वैल्यू, a is equal to 1 plus root 5 और you can write root 5 plus 1। आप उसको root 5 plus 1 भी लिख सकते हैं। a means a क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी थी, तो a क्यू हमारे पास क्या आ गया, root 5 plus 1। Then students we will stop here। I will send you an assignment related to the same topic। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले भी आपको 2-3 असाइनमेंट दिए हैं,
कल मैं एक असाइनमेंट और आपको फॉरवर्ड करने वाला हूँ, तो उसको सॉल्व कीजिएगा और प्रॉब्लम्स आती हैं तो डिस्कस जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।